Hello. Good evening, all. We would start in a minute, so please wait. Am I audible? Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, yes. Is it audible? Yes, sir. Okay. So we'll just start in 2 to 3 minutes. A few more students are expected to join. So we'll just start in 2 to 3 minutes. Sir, will you share this webinar later on WhatsApp group or not? Sorry. Sir, will you share this webinar later on WhatsApp group or not? If required, we'll send. Like for what purpose you want on WhatsApp? Sir, means if we disconnected for some reason in between, that's why. If it is disconnected, yeah, we'll share it. Not an issue. Okay, sir. Thank you.
Yes. Hello all. Please confirm if I'm audible. Am I audible? Yes, sir. I think there is some internet issues with these 2-3 students. They have just joined. एक second. Okay, so एक second. So I hope you can see the screen. Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay, thank you. So we are going to discuss about MBA and the preparation to get yourself into top B schools, right? So what is the way and what are the required exams, right? Which colleges conduct what kind of exams? So all your queries will be resolved, right? So एक second, let me check. Rishikesh, Om, and Mittal. I hope I'm audible to you all. Audible and visible. The screen is visible. Can you see this YMBA? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. So first and foremost thing is why we should go for MBA, right? So there are 2-3 major reasons you may have. किसी का already decided होगा कि मुझे MBA जाना ही जाना है, वो पहले से decided था कि मुझे PG करना है. किसी का BBA तुम MBA करना ही करना है. कुछ लोगों ने अभी पैंडेमिक की वजह से सोचा होगा कि ग्रेजुएशन में इतना कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो लेट्स गो फॉर MBA, राइट? सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस. एक सेकंड में ये एक्सेप्ट करता हूँ, राइट? सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन. सो वन रीजन इज आपने पहले प्री डिसाइडेड था कि आई हैव टू गो फॉर MBA. दिस वाज प्री डिसाइडेड. द सेकंड इज बिकॉज ऑफ पैंडेमिक मैं MBA ट्राई करना चाहिए, राइट? ऐसा आपने सोचा होगा. एंड तीसरा यूं ही कि मुझे किसी ने बोला है MBA करना है तो हमें MBA करना है, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं. So why MBA, right? Why should go for MBA? There is strong reason actually. देखो, जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छे से करियर होता है, सो वो नहीं सोचते कि मुझे कुछ PG वगैरह करना है. लेकिन ग्रेजुएशन में अगर कुछ आउटकम नहीं मिलता है, राइट, तो हमें PG के लिए सोचना होता है. एंड MBA is one of the best options, right, as far as PG is concerned. Why I am saying that, and not because कि मैं अभी हम लोग MBA में, हम लोग बाकी भी PG के ये करते हैं, लेकिन MBA is I would say one of the prominent option among them. And अभी अगर आपने पैंडेमिक में भी, लेट मी आई मीन डाइव इनटू डायरेक्टली द आउटकम. अगर आपने पैंडेमिक में ये जो 20 स्कूल्स है ना, आपने छोटे मोटे 20 स्कूल्स भी देखे होंगे ना, आई मीन जो बेबी IIMs हम लोग बोलते हैं, राइट? जैसे IIM संबलपुर, IIM जम्मू, राइट? ऐसे कुछ IIM से उनके भी अगर आपने प्लेसमेंट पैकेज अभी जो अप्रैल एंड मई में उनके जो प्लेसमेंट्स हुए वो अगर आपने देखे होंगे, तो टॉप 25% स्टूडेंट्स गॉट 14.5 lakhs का पैकेज. ये IIM जम्मू और IIM संबलपुर का मैं बोल रहा हूँ, जो कि एकदम छोटे IIM से, एकदम मतलब आउट ऑफ दिस 21 odd IIMs, राइट? सो these are bottom 2 I am telling you. So जो 25% टॉप के स्टूडेंट्स थे उनको आई गेस 14.5 lakhs का कुछ पैकेज है, वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे along with all the details of students is published, राइट? तो आप वहां पे चेक कर सकते हो. नाउ जो टॉप IIM से उनका तो थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा ऊपर जाके आप सोच सकते हो.
राइट. सो एवरेज यू कैन से कि अगर मुझे आईएम्स या टॉप इंस्टीट्यूट्स में अगर हमें कुछ मिलता है अच्छे से, राइट, एडमिशन, तो उसमें अगर हम ढंग का एमबीए करते हैं, मेयरली गेटिंग एडमिशन इज वन ऑफ द पार्ट, लेकिन उसको निभाना भी पड़ता है थ्रू दोस 2 इयर्स. तो अगर हम वो निभाते अच्छे से, तो आप समझ सकते हो कि एवरेज 18-20 lakhs का पैकेज, एवरेज में बोल रहा हूँ, इफ you are into top 100 institutes, not only IIMs, but there are many other institutes who can offer you good amount of package. So 100 to 150 top institutes of India will definitely take your career through upper ladder. Try to understand, बहुत important है. And this is why people, this is why students get motivated towards this particular specialization, this particular degree, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, राइट, एमबीए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना. एंड दैट टू इन दिस पैंडेमिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पैंडेमिक में जहां पे अप्रैल मई में यू नो ऑल द सिचुएशन थ्रू आउट द कंट्री, स्टिल दिस बॉटम आईएम्स कुड ऑफर अगर 14.5 lakhs का पैकेज. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें सच में अगर कुछ मेहनत किया तो हम ये ला सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. जैसे मैंने बोला कि यस, अगर आपको टॉप 100 या टॉप 150 इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया अगर आपको जाना है, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है यार हम जाएंगे, लेकिन उसका जो रूट है इतना भी इजी नहीं जो हम लोग सोचते हैं, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना वो अफवाह है कि कैट इज वेरी मच डिफिकल्ट या MBA एंट्रेंस आर वेरी मच डिफिकल्ट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. एकदम सिस्टमेटिकली अगर हम लोग जाएंगे, थिंग्स वुड बी वेरी मच सिंपलर. और ये कैसे जा सकते हैं, आपके जो भी क्वेरीज होंगे, हम ये थ्रू आउट प्रेजेंटेशन, ये जो सेशन रहेगा, विल हैव अ क्विक सेशन, विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम. सो जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपके जो भी क्वेरीज होंगे, आई वुड से कि वो क्लियर होंगे. बट अगेन अगर एंड ऑफ द सेशन में आपको लगा कि मेरा ये क्वेरी बचा है, वो क्वेरी बचा है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, राइट. सो एक सेकंड. So as I already told you why MBA is preferable. So better job opportunities, not in terms of package also, but good number of job opportunities provided you go to the top bunch of colleges. नहीं तो लोकल कॉलेज से अगर एमबीए करोगे तो आपको भी पता होगा, आपके आसपास कुछ कॉलेजेस होंगे तो आपको भी पता है. लेकिन अगर सच में अगर कुछ करियर बनाना है, सो हमें थोड़ा सा टॉप में रहना पड़ेगा. टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करना मतलब टॉप क्वालिटी का हार्डवर्क होना चाहिए. टॉप क्वालिटी का हार्डवर्क के लिए उतना कंसिस्टेंसी, उतना डेडिकेशन, उतने हमारे कॉन्सेप्ट्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, वो सब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए. लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा अच्छे से होना चाहिए. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा अच्छे से होना चाहिए. तीनों सेक्शंस अगर हम बहुत अच्छे से करेंगे थ्रू द प्रॉपर मेंटरिंग, राइट, तो ये नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल, राइट. थोड़ा स्मूथली हम थोड़ा सिस्टमेटिक उसका प्लान भी देखेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन. सो हायर करियर ग्रोथ, जैसे आप कुछ चीजें यहाँ पे देख रहे हो, बिगर चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई होप यू आर अवेयर. अगर आप if you go to the top institutes, right, and अगर आपका जॉब ऑफर होता है तो आपको कोई बोलता नहीं कि आप ये जाके बेचो, ये पेन जाके बेचो. मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स go to the profile called as कंसल्टिंग सेक्टर में आप जाते हो, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस के, आप कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, और वहां पे आप चैलेंजिंग काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस लेवल के होते हैं, क्वालिटी वर्क होता है, राइट. आपको अगर आपको पता होगा लोकल कॉलेज से एमबीए करते तो इंश्योरेंस बेचो, राइट, लोन बेचो, ये चीजें कर रहे लोग. कुछ लोगों को जॉब ही नहीं मिल रहे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये करना है. और ऐसा, पहली बात ये क्लियर करो कि मैं यहाँ पे बैठा हूं मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया मतलब आपका अभी 20 लाख का पैकेज फिक्स है. ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी कैन प्रिपेयर यू गाइज 65%, अराउंड 65% हम लोग आपको प्रिपेयर कर सकते हैं एकदम अच्छे से, बाय वे ऑफ शॉर्टकट टेक्निक्स, राइट. आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ
जाएंगे, आपको प्लान देंगे, स्टडी प्लान देंगे, मेंटरिंग देंगे, कहाँ पे क्या करना है, कब मॉक्स देने, ये हम हमारी तरफ से सब करेंगे। लेकिन जो बचा हुआ 35% है वो आपकी तरफ से आना चाहिए, तो ही आउटकम बचता है, तो ही आउटकम कुछ आपको मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच के आए हो कि हमें करियर लॉन्चर एकदम रेडीमेड बना देगा, तो दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। आई एम वेरी मच ऑनेस्ट विथ एंड वी आर वेरी मच ऑनेस्ट विथ आवर ड्यूटीज. Try to understand. We can make you 65%, rest 35% is expected from you by way of continuous assignment. जो भी आपको मिल रहे हैं वो असाइनमेंट सॉल्व करो। आप जो भी मॉक्स आपको मिलने वाले करियर लॉन्चर पे 25 मॉक्स होते हैं, आपको फुल लेंथ मॉक्स, आपको टेस्ट जिम दिया होता है, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वो आपको कंसिस्टेंटली देने हैं। और कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंटली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 5 घंटे 6 घंटे पर डे आपको देना है, राइट? वो भी मैं आपको बोलूंगा कि कितना फीजिबल टाइम देना चाहिए पर डे। तो 5-6 घंटे तो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, आगे देखेंगे। एंड बेटर पे पैकेजेस ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दिस आर सम ये घुमा फिरा के वही हो रहा है कि करियर एंड पैकेजेस वगैरह ये चीजें यहाँ पे होती है। सेक्टर बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस, यस। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है, अगर आपको मार्केटिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, राइट, तो मार्केटिंग मतलब आप अगर अच्छे कॉलेजेस से एमबीए करते हो तो आप एक्चुअल मार्केटिंग प्रोफाइल में जाते हो, राइट। यहाँ पे जब अब हम लोकल कॉलेजेस देखते हैं ना, तो हम मार्केटिंग मतलब is synonym for selling actually, राइट, वो गलत है। मार्केटिंग मतलब प्योर मार्केटिंग। बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें आप देख सकते हो, जैसे कि सपोज कोई शाहिद कपूर का कोई परफ्यूम का एड भी आता है ना, तो वहां पे वो मार्केटिंग टीम बैठा होता है, एंड देन दोज मार्केटिंग गाइज आर फ्रॉम दीज टॉप इंस्टीट्यूट्स, कि किसको, किस सेलिब्रिटी को सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो रिसर्च करते हैं, उनका टीम लगाते हो काम पे, वो टीम उनका रिसर्च करता है कि ये एक्टर इज वेरी मच रिलेवेंट विद दिस ब्रांड, तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये मार्केटिंग वालों का काम बनता है, राइट। अच्छे कॉलेज से करोगे, नहीं तो फिर आपको वो ऐड कर रहा है ना शाहिद कपूर, उसको वो जो प्रोडक्ट लेट से शैम्पू वो लोकल कॉलेज में बेचना पड़ता है अगर लोकल कॉलेज से एमबीए करते हो। सो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस आई वुड से। एक्चुअली डिफरेंस है, आप कहीं पे भी मतलब आपके जो सीनियर्स व्हाटएवर आर डूइंग द एमबीएस फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स, यू विल रियलाइज कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम मतलब वो क्या बोलते हैं, लाइन है, पत्थर की लाइन है, राइट। सो these are the routes to do MBA. अगर आपको MBA from India करना है, so these are the exams, particular majorly these are the exams we face. MBA from abroad के लिए these are the exams in front of you. अभी यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना सर कि इतने सब एग्जाम्स देने ऑर्डर। हमारा फर्स्ट मेजर प्रायोरिटी रहता है, एक सेकंड, ओके। सो ये these are the exams which we give in इंडिया में अगर हमें एमबीए में एडमिशन लेना तो these are the exams। और आपने एक लेट से कैट का अगर प्रिपरेशन किया ना, तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग जेड के लिए पढ़ना पड़ता है अलग से, आईएफटी के लिए आपको जनरल नॉलेज अलग से पढ़ना पड़ता है, एनमैट के लिए थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग। एनमैट इज अ वेरी इजियर देन कैट, स्नैप इज इजियर देन कैट, सीमैट इज इजियर देन कैट, महाराष्ट्र सीईटी इज इजियर देन कैट, माइकेट इज इजियर, टीसनेट, ऑल दिस जो एनमैट से नीचे है ना, सब इजियर लेवल पे। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो कैट के बाद हम लोग कर सकते हैं। आपको पता होगा कैट ये नवंबर में हम लोग अपीयर करते हैं एग्जाम, उसके बाद हमें ये जो एग्जाम्स है वो देने होते हैं, तो उसके लिए अलग से पढ़ाई की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अगर रिगरसली पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, these 5 months are very much crucial in your preparation। ये 5 to 6 months आपको करना है प्रिपरेशन, वो एकदम अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए 6 मंथ में। जैसे आप ये प्रिपरेशन करते हो तो जैट आपका होता है दिसंबर में, जिसके लिए आपको सिर्फ एक टॉपिक होता है डिसीजन मेकिंग,
वो आपको अलग से पढ़ना होता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कैट, राइट, कैट का सिलेबस। देन आईएफटी के लिए ऑलरेडी आपने कैट पढ़ा है, उसमें सिर्फ जनरल नॉलेज ऐड होता है, वो जनरल नॉलेज आपको पढ़ना होता है। सो वो आपको सब गाइडेंस थ्रू आउट द जर्नी आपको मिलता रहेगा, राइट। हम ये इसमें काफी एक्सप्लेन भी किया आगे, वो देखेंगे। नाउ पैंडेमिक वर्सेस एमबीए, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि पैंडेमिक और एमबीए पे इफेक्ट कितना हुआ है। अगर आप सच में ये इंस्टीट्यूट्स के, आप खुद भी मतलब चेक कर सकते हो कि ये जो भी इंस्टीट्यूट्स थे ना, टॉप इंस्टीट्यूट्स, उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स पब्लिश होते हैं, राइट। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अगर 2020, 29, 2018 वहां पे जो प्लेसमेंट फिगर्स है और अभी के प्लेसमेंट फिगर्स अगर आप देखोगे 20 के, 21 के, so you'll realize कि there is no much of hampering on the placement numbers, not much of hampering. In fact, in few cases there were growth also, कि growth हुआ है in terms of placement numbers also and placement package percentage also, right? तो वहां पे ज्यादा पैंडेमिक का असर नहीं हुआ है। नाउ ये एक्सपर्ट के हिसाब से पैंडेमिक इज गोइंग टू therefore expected recovery 18 months दिया है, but no one can definitely say actually, right? ये जो एक सेकंड, ये जो चीजें बोला है, दिस आर द एक्सपर्ट जो हम न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह इस पे इसके ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ से ये रिसर्च उठा है। लेकिन स्टिल ये 90% आप बोल सकते हो, 10% में हमें पता नहीं। बट स्टिल अगर आपने ये भी साल का सोचा where the situation was very kind of worst, right? अभी वैक्सीनेशन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा रिकवरी होने वाला है आगे जाके, वो दिख रहा है थोड़ा, राइट। तो इससे तो कम ही आई वुड से अफेक्टेड रहेगा इन द कमिंग मंथ्स एंड कमिंग इयर्स। सो आपका एमबीए, अगर आपने कैट 2021 में दिया कैट एग्जाम और उसमें अच्छा स्कोर आया, उसमें अगर आपका अच्छा स्कोर आता है एंड यू विल बी हैविंग एडमिशन इन द नेक्स्ट जून 2022, यू विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन थ्रू दिस ईयर्स कैट, और वो 2022 से आपका एमबीए चलेगा 2024 तक, राइट। तो तब तक आपका एमबीए चलना है, मतलब अब से अगर आप एग्जैक्टली सोचेंगे तो 3 साल के बाद आप एमबीए पास आउट होगे। एक सेकंड, आफ्टर 3 years हम लोग एमबीए पास होने वाले हैं। सो यू कैन इमेजिन तब तक काफी हद तक हम लोग रिकवर हो रहे होंगे इस पैंडेमिक से, राइट। एटलीस्ट इस पैंडेमिक से हम लोग काफी अच्छे से रिकवर हो रहे होंगे, और इकोनॉमी भी उतना अच्छे से रिकवर होगा, तो यू विल बी लैंडिंग अप विद अ गुड पीरियड। ये थोड़ा सा मतलब आई वुड से एक ज्योतिष काइंड ऑफ थिंग होगा ये बोलना, क्योंकि अब हमने कोरोना का कुछ सोचा नहीं था, वो अचानक से आ गया। तो अभी आगे जाके क्या होगा पता नहीं, बट नाउ थिंग्स आर वेरी मच शिफ्टिंग टू टुडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू, ये लेक्चर के लिए मुझे थोड़ा सा बच्चों के थोड़े व्यूज चाहिए थे। सो आईएमसी का एक स्टूडेंट आई वाज टॉकिंग, सो ही वाज सेइंग कि सर अभी तो मतलब हो रहा है, मतलब हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे थे, 3 months दे हैड ऑफलाइन लेक्चर, दिसंबर जनवरी फरवरी उनको ऑफलाइन लेक्चर हुआ, लेकिन अभी फिर से ऑनलाइन चल रहा है। और अभी उनका समर इंटर्नशिप भी जो था वो 100% हुआ है, राइट। तो उसमें भी कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है, और अभी का जो बैच हुआ है वो भी काफी हद तक मतलब अच्छे से प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं लगा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा है, क्योंकि ऑनलाइन सब चीजें चल रही है। आप कहीं भी अगर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे ना जो रिलेटेड टू एमबीएस, राइट, आईटी सेक्टर तो आपको पता है पूरा ही ऑनलाइन है, एजुकेशन सेक्टर इज कंप्लीटली ऑनलाइन नाउ, जो भी कॉलेजेस वगैरह जो भी हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, राइट। अभी जेबी का हमारा यहाँ पे आपको मिलेगा अगले रिजल्ट्स में, करियर लॉन्चर नासिक का रजत जादव करके स्टूडेंट है, उससे भी मैंने आज सुबह बात की, करियर लॉन्चर का स्टूडेंट था, अभी जमनालाल बजाज में। He has also started his online classes from February, right? Due to वो CET का थोड़ा लेट हुआ ना, तो अभी फरवरी से उनके क्लासेस शुरू हो गए। तो बोल रहे सर अभी तो हमें मतलब शुरुआत में लगा था कि ये पैंडेमिक से वजह से कुछ सर जॉब पे असर होगा या क्या नहीं, लेकिन अभी 2 साल और है, ऑलरेडी ये बैच को काफी अच्छे से जेबी ने प्लेस किया है, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यस वी कैन डू मच बेटर, राइट। तो ये चीजें हैं, मतलब पैंडेमिक का अगर डर है तो वो थोड़ा सा आपका कम होना चाहिए एक्चुअली।
नॉट बिकॉज ऑफ ओनली वैक्सीनेशन, बट वो आपको 3 साल के बाद आप एमबीए पास आउट होने वाले हो, 3 साल बाद आपका प्लेसमेंट का सोचना है, ठीक है। एक मिनट ना, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ डाला, सर कैन वी गेट दिस वेबिनार रिकॉर्डेड? मित्तल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई वुड रिक्वेस्ट, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेने वाले हम लोग, दिस विल क्विकली बी वाइंडेड अप। एनी ईयर इज okay. Any year is a good year to be an MBA graduate. Right. So ये थोड़ा सा on the basis of some experts input, CAT 2021 का इनटेक, मतलब आपका एडमिशन होगा 2022 में, राइट। तो आपका प्लेसमेंट सीजन रहेगा 24, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर कैट, तो उनका तो मतलब काफी देर बाद है वैसे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोफाइल सेक्शंस वी हैव, लाइक बी स्कूल में जाना मतलब टेस्ट स्कोर आपका अराउंड 70% वेटेज होता है, बाकी प्रोफाइल स्कोर वगैरह ये चीजें आपको देखना पड़ता है। लेकिन ये बाद वाला पार्ट है, मतलब जैसे पहला हमारा टारगेट होना है इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, बाकी ये जो चीजें वो हम लोग हमारी तरफ से आपको मेंटरिंग करते हैं, वहां पे ट्रेनिंग होता है पर्सनल इंटरव्यूज का, राइट। 1-to-1 जिनको कॉल्स आते हैं उनका 1-to-1 हम इंटरव्यूज रखते हैं, राइट। वैट स्कोर व्हाटएवर सब गाइडेंस आपको वहां पे मिलता है। सो ये बहुत बात की बात है वैसे, लेकिन ये स्टेजेस से आपको जाना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज गेटिंग द बेस्ट स्कोर in your return test, CAT or whatever MBA entrance you give, right. These are the minimum percentile requirements to get the calls, ये to get the calls actually, right. कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा इससे ज्यादा लगेगा, मतलब काफी ज्यादा लगेगा। सो IIM A आपको कब कॉल देगा, IIM B कब कॉल देगा, IIM C कब कॉल देगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक्चुअल कुछ केसेस है, आप अभी भी ऑनलाइन पे सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 89% ओवरऑल कोई बंदा IIM A क्रैक कर लिया, राइट। तो ऐसे केसेस एक्चुअली है, तो कॉल देते, अगर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लगे तो भले उसके परसेंटेज थोड़े, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। द टारगेट ऑफ अस शुड बी गो बियॉन्ड, वी वुड से 99 प्लस, ये तो पहला टारगेट होना चाहिए कि 99 प्लस परसेंटाइल लाना है। अगर आप क्लास लगाते हो तो आपका अधिकार बनता है कि हमें सर ये चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला जो 35% आपका कंट्रीब्यूशन होना है वो आपको बिल्कुल वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ड्रीम ऑफ दिस, राइट। वहां पे आगे थोड़े स्कोर्स आपको दिखेंगे, सो यू गेट एन आइडिया। जैसे मैंने बोला ये प्रोफाइल थोड़ा सा ये थोड़ा सा लैटर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन होगा। पहले हमारा प्रिपरेशन का चीज है कि वी शुड फोकस ऑन द बेस्ट कैट स्कोर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कन्वर्टेड, राइट, एवरेज कन्वर्टेड गाइस, ये यहाँ पे परसेंटाइल्स आप देख सकते हो। दीज आर फ्यू ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स आर मेंशन्ड, नीवेस्ट IIMs, लोवेस्ट IIMs। तो यहाँ पे आपको कॉल्स मिलते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। वहां पे कॉल्स मिलते थे 80%, है यहाँ पे कन्वर्जन का टेबल यहाँ पे दिया है। लेकिन जैसे मैंने बोला इन सम ऑफ द केसेस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर रहता है कोई बंदा इंटरव्यू में, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, तो 89% पे भी IIM अहमदाबाद कॉल दिया है, ऑनलाइन उसकी डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि आवर गोल शुड बी 99 प्लस, कुछ भी होने दो, हमें भले IIM नहीं चाहिए तो भी 99 प्लस का गोल होना चाहिए, राइट। सो व्हाट इज कैट एग्जैक्टली? कैट में 3 सेक्शंस होते हैं। एक मेरे पेन टैबलेट So in CAT we have 3 sections: quantitative aptitude, DILR and VARC, right? ये CAT 2019 का पैटर्न है। In 2020 what happened? See, CAT 2020 what happened? VARC ये पैंडेमिक की वजह से थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है, लेकिन nobody is sure now
नोबडी श्योर, आपको ये भी पैटर्न देखना पड़ेगा अच्छे से, और कैट 2020 का भी पैटर्न देखना पड़ेगा, 26 एंड 24, राइट। तो दीज वर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बाकी मार्किंग सेम, बाकी सब अलोकेशन सेम था, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर चेंज्ड, ठीक है। मार्किंग सेम एकदम सेम है कि 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आप गलत क्लिक करते हो तो आपका 1 मार्क कम हो जाता है, राइट। सो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। दिस इज कैट 90, मतलब पिछले 5 साल का, सो यूड से 2015 टू 2019, ये पिछले 5 साल का ये पैटर्न था। 34, 32, 34 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? आपका अरिथमेटिक, उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सब टॉपिक्स, राइट। इसके अगर आप करियर लॉन्चर के हैंडआउट देखोगे तो टॉपिक वाइज असाइनमेंट है अपने पास। क्वांट के 30 टॉपिक्स है, राइट, 30 टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स। तो वो एकदम हैंडआउट आपको मतलब क्लासरूम हैंडआउट्स होते हैं, असाइनमेंट आपको मिलते हैं, टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलते हैं, तो सब अच्छे से क्लियर होगा। मतलब सिलेबस का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारा काम ही वही है कि आपसे वो सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाना, और आपको टॉपिक वाइज व्हाटएवर असाइनमेंट जो भी हमारे पास है, कुछ सीएल के डेडिकेटेड बुक्स है, वो आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे थ्रू दैट, एंड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, टेस्ट जिम वगैरह ये चीजें होती है। तो सब मटेरियल आपको मिलेगा, लेकिन करना भी, वो उसके ऊपर काम करना भी आपका कर्तव्य बनता है, इफ यू आर रियली एमिंग फॉर 99+%, ये काम अगर है तो ये आपको करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस वगैरह क्या होता है, क्वांट में जैसे अलजेब्रा होता है, मॉड्यूलस, इनइक्वालिटीज वगैरह, ये थोड़ा अलजेब्रा का पार्ट होता है। यहाँ पे कुछ लोग डरते हैं, जो डर खत्म करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो हम अच्छे से निभा रहे हैं। एंड ज्योमेट्री होता है क्वांट में। देन इन लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यू हैव गेम्स एंड टूर्नामेंट, you have pie charts, scatter plots, you have set theory, arrangements and puzzles। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आई वुड से। देखो ये तीनों सेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है करना, राइट। लेकिन वो मैं आपको एक नेचुरल स्टफ भी आपको बोलता हूँ कि बच्चों का क्या होता है कि शुरुआत में वो एकदम जोश दिखाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा फिर कुछ अगर उनको डिफिकल्ट लगा, सपोज कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोगों को अरिथमेटिक डिफिकल्ट जाए, कुछ लोगों का अरिथमेटिक बहुत अच्छे से जाता है, अलजेब्रा डिफिकल्ट जाता है, कुछ लोगों का अलजेब्रा बहुत अच्छा हुआ होता है साइंस में, राइट, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट जाता है, ऐसा कुछ लोग होते हैं, राइट। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये थोड़ा सा नेचुरल फेज आ भी सकता है कि आप मतलब प्रिपरेशन करोगे या व्हाटएवर। अभी आप कुछ लोग यहाँ पे होंगे, ये ऑलरेडी उनका बार नीचे है कि बहुत डिमोरलाइज है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, ऐसे, राइट। लेकिन आप जैसे हमारा मतलब हमारे जो फैकल्टीज हैं, उनका अगर सेशन आप 1-2 सेशंस आप करके देखो, यू विल हैव एक्सेस टू फ्री डेमो लेक्चर ऑल्सो, राइट। आपको फ्री डेमो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको बना है। तो लेक्चर आप करके देखो, आपका ये जो डर होता है ना, डीमोटिवेशन वगैरह, वो सब कम हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आप बोलो, मतलब लेट से आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे अगर आपको डर लगता है, एक टॉपिक करो, उसके ऊपर असाइनमेंट मिलता है, वो सॉल्व करो, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, थोड़ा सा अलग लेवल पे आ सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बार क्या होता है कि लोग मतलब सेल्फ स्टडी इज नॉट अ क्राइम, नॉट एट ऑल, बट हर एक का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, हर एक का ग्रास्पिंग लेवल अलग अलग होता है। कुछ लोगों को आदत होता है कि अगर कोई फैकल्टी ने एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया तो हमारा एकदम अच्छे से ध्यान में रहता है। तो ऐसे लोग कुछ मतलब गलत गाइडेंस या व्हाटएवर कुछ अलग दिशा में चले जाते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि 1-2 हमारे डेमो लेक्चर्स करो, मतलब सीएल के, सच में करो, सो यू विल रियलाइज कि कितना इजीली ये आप पार कर सकते हो तीनों सेक्शंस, राइट। ये इसमें अराउंड 30 टॉपिक्स है, इसमें अराउंड आपके डीआई और एलआर मिला के अराउंड 12 to 15 टॉपिक्स है, एंड वीआरसी के यू हैव टॉपिक्स कम है, लेकिन आरसी जो पार्ट है वो काफी अच्छा खासा होता है, बाय द नंबर ऑफ टॉपिक्स कम होते हैं। ये चीजें हमें करनी है अपकमिंग 5 to 6 मंथ्स में। लेकिन ये 5 to 6 मंथ मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं लगाने, सिलेबस कंप्लीशन शुड बी टारगेटेड इन 3.5 मंथ्स ओनली। उसके बाद हमें सिर्फ मॉक्स एंड मॉक्स सॉल्व करने, राइट। सीएल में आपको सब मॉक्स वैसे मिल भी जाते हैं। दिस वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ये जो भी रहेगा आपका डीएलआर, क्वांट वगैरह, इसमें अरिथमेटिक कितना होता है, अलजेब्रा कितना होता है, ये आपको सब मिलेगा इन द फर्स्ट सेशन यू डू, ओके।
अगेन दिस इज द सेम थिंग। ये सिलेबस सब आपको कंप्लीट कराना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी अबाउट दिस। ये तीनों चारों 3 साल के एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे है। प्रिपरेशन में दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक आई होप किसी को कुछ क्वेरी रिलेटेड टू सिलेबस, कुछ भी क्वेरी होगा अब तक का तो बोलो, इसके आगे हम प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करेंगे। अब तक कुछ क्वेरी है रिलेटेड टू कॉलेजेस, रिलेटेड टू परसेंटाइल व्हाटएवर, कुछ क्वेरी है? एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, ध्यान दो, अगर आपका कैट 300, इनफैक्ट मैं रिसेंट एग्जांपल लेता हूं, कैट 2020 जो था ड्यू टू पैंडेमिक वो 228 मार्क्स का था। नॉर्मली कैट होता है 300 मार्क्स का, राइट? तो इस साल 300 रहेगा या 228, नोबडी कैन टेल। ठीक है, नाउ 228 मार्क्स में से टेल मी ऋषिकेश, क्या लगता है तुम्हें 99 परसेंटाइल कितना स्कोर होना चाहिए? कितना स्कोर होना चाहिए था एक्चुअली? कितना स्कोर होना चाहिए था अगर 228 में से 99 परसेंटाइल से, परसेंटेजेस में कितना होना चाहिए? बोलो सर 220 के आगे होना चाहिए। 220 के आगे होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना है? ओके, ओम क्या लगता है तुम्हें, कितना स्कोर होना चाहिए, क्या लगता है तुझे? एक मिनट, ये ठीक है, देखो ऋषिकेश, 220 के आगे नहीं, 99 परसेंटाइल के लिए आपको आउट ऑफ 228 ओनली 98 मार्क्स चाहिए थे। 98 मार्क्स चाहिए थे कैट 2020 वालों को। ये कैट स्लॉट 3 स्लॉट में होता ना कैट, तो ये स्लॉट 1 एंड 2, 98 मार्क्स जिसको मिले उसको 99 परसेंटाइल थे। और स्लॉट 3 में 102 मार्क्स जिसको मिले आउट ऑफ 228, वो 99 प्लस परसेंटाइल पे था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आउट ऑफ 228 आपको सिर्फ इतने मार्क्स चाहिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 43%। मतलब 228 मार्क्स आउट ऑफ दिस टोटल मार्क्स, अगर आप 45% मार्क्स लाते हो ना तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है, 99 परसेंटाइल बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? तो इतना आपको ये डर बंद करो कि मुझे 99 मतलब मुझे अब तक तो मुझे 10th में 60% मिले, मुझे 12th में 70% मिले, मुझे ग्रेजुएशन में 60-65 मिले, राइट? तो ये अगर डर होगा तो उसको कम करो थोड़ा। हमें एक्चुअल वो परसेंटेज तो 45% ही चाहिए पूरे एग्जाम के, लेकिन these marks 45% मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके होंगे 110 मार्क्स, will take me to 99.3 percentile, right? Percentile and percentages is very much different, right? Very much different. Try to understand this, right? तो how to crack cat in 180 days, अगर हम हिसाब करोगे आप तो 180 डे के अप्रोक्सीमेटली आपके पास बचे। और जैसे मैंने बोला, अगर आप 0 लेवल पे हो ना अभी अगर आप 0 लेवल पे लेट से, तो आपके पास 180 डेज मतलब आपके 6 मंथ्स into 4 वीक्स, मतलब आपके पास 24 वीक्स है, 24 वीक्स आपके पास है। सो ईच वीक इफ यू टारगेट फोर मार्क्स, राइट? ईच वीक इफ यू टारगेट की 4 मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, 4 मार्क्स मिलने चाहिए ईच वीक का, आपका ये इंप्रूवमेंट टारगेट होना चाहिए। इज इट डिफिकल्ट टू गेट 4 मार्क्स? मतलब अगर मुझे एक वीक में 4 मार्क्स खुद को आई मीन से डेवलप करना है, मुझे इतना स्किल डेवलप करना है कि मुझे एक वीक में 4 से 5 मार्क्स मुझे चाहिए, इतना ही काम करना है। सो ड्यूरिंग दिस 24 वीक्स यू आर गोइंग टू 4 to 5 मार्क्स अगर आते हैं तो आपके 96 to 120 इतने मार्क्स आपके मिल जाते। और अगर इतने मार्क्स मिलते तो आपको 99 प्लस परसेंटाइल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गोइंग टू बी वेरी मच इजियर। ये प्लान बहुत इजी जाएगा जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से इनइक्वालिटीज का, अलजेब्रा का,
राइट। तो बेसिक से आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज क्या होता है। अगर मैं x + 5 लिखता हूँ 8 and at the same time if I am writing x + 5 is greater than 8, right? So this is equation। ये जैसे जन्म हुआ है हमारा तब से पढ़ रहे हम लोग। लेकिन ये इनइक्वालिटी क्या होता है, व्हाट आर ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन दिस, राइट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने 2 घंटे में भी अच्छे से समझ लिया फैकल्टी से, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हम लोग सब व्हेन वी टीच अ टॉपिक, तो ड्यूरिंग दैट 1 सेशन और 2 सेशंस ऑन दैट टॉपिक हम कैट 20 के क्वेश्चंस लेते हैं, कैट 19 के क्वेश्चंस लेते हैं, तो आपको रिलेट करते हो कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से और एकदम रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, राइट। वो थोड़ा सा आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। नाउ ये जो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बोला, ये सिलेबस आपको मिलेगा, क्या चीजें होती है क्या नहीं, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये सिलेबस वही है, फिर वीआरसी का सिलेबस है। this was session taken actually on 23rd, today we have 31st May, right? So यहाँ पे कुछ, हाँ देखो, now if you see out of 4000 hours, अगर हम 400 hours देते तो we are in a very better position to get 99 plus। अभी से अगर भी सोचते, मतलब 10% of your time, 10% of your time मतलब 24 hours में 10% अगर हम लोग सोचते तो आपको 2.5 hours देने, 2.5 hours a day 24 hours में से, राइट। और अगर आपको सच में थोड़ा बोनस चाहिए कि मुझे नहीं थोड़ा बोनस ही पढ़ाई करना है, ज्यादा टाइम दो ना अगर आपके पास अवेलेबल है, गिव 1 or 2 hours more into this। सो डेली अगर हम लोग 3 hours के आसपास पढ़ाई करते, अब से डेली 3 hours के आसपास along with our lectures, तो कोई रोक नहीं सकता आपको from getting that 99 percentile, कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी, राइट। लेकिन उतना कंसिस्टेंसी, उतना डेडिकेशन होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ऑलरेडी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर 3 घंटे तो कितना है क्या है, ठीक है। वैसे जैसे मैंने बोला आपको कि हमें मॉक्स देने हैं, मॉक्स शुड बी स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम सितंबर एटलीस्ट। अगर आप अभी से शुरू कर दो ना, जून, जुलाई, अगस्त, राइट, तो अगस्त एंड सितंबर, मिड ऑफ सितंबर तक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद मिड ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मॉक्स एंड देयर एनालिसिस। ये मॉक और उनके एनालिसिस हमारे मतलब सीएल के जो गुरुज आपको पता होंगे, जेपी सर, राइट, आग सर वगैरह, वो भी वीडियो एनालिसिस करते हैं ईच एंड एवरी मॉक्स का, आपको एनालिसिस मिलता है, आपको अलग से कुछ पैसे फीस भरने की जरूरत नहीं होती है, उसी एडमिशन में आपको ये एक्सेस मिलता है। तो वहां पे ऑनलाइन मॉक सॉल्यूशन तो होता ही होता है, अगर क्लासरूम ट्रेनिंग तब तक अगर होती है, राइट, तो हमारे फैकल्टीज भी यहाँ पे आपको मॉक सॉल्यूशन करा लेते हैं, ठीक है। सो वो भी टेंशन नहीं, कुछ भी क्वेरीज होगी आप मॉक्स में भी व्हाटएवर आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो क्लास में, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड प्लान योर प्रिपरेशन, राइट। एक सेकंड, I'll talk more about this now. So ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सोर्सेज, दिस कैन बी मच, अगर आप थोड़ा वर्बल का डेमो लेक्चर करोगे तो आपको ये चीजें वर्बल में क्या होता है, कौन से सोर्सेस हमें पढ़ने चाहिए। सो वी हैव डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो शी कैन टेल यू परफेक्टली ऑन दिस, राइट। फिर भी मतलब ज्यादा कुछ नहीं, आप ये देख सकते हो कि इतने सारे मतलब ये सब नहीं करने, उसमें से आप एक कुछ तो भी पकड़ लो। लेट्स से आपने द हिंदू पकड़ लिया, व्हाटएवर, राइट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, कोई तो भी एक पकड़ लो, उसमें से जो भी एडिटोरियल्स रहेंगे वो आप पढ़ सकते हो। या तो बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीधा आरसीस पढ़ते हैं, राइट, जो करंट आरसीस है ना वो पढ़ते हैं। तो आपका होता क्या है कि आपको आरसी का लैंग्वेज भी एकदम फैमिलियर होता है और आप उसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हो, तो प्रैक्टिस भी होता है, तो आपका रीडिंग भी होता है, आपका सॉल्विंग भी होता है। देयर आर 2-3 थिंग्स, वो जो भी आपके वीआरसी के मैम होंगे आपको यहाँ पे अच्छे से आई वुड से क्लियर कर सकते हैं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, एज आई सेड, ये हम कैसा प्लान कर सकते हैं। देखो जनरली हम लोग जो प्लान करते हैं ना, वीक में आपके जो भी नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, 3 to 4 जो भी नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, उसमें कॉन्ट, एलआरडीआई एंड वीआरसी आपका प्लान होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस आपके
जो एसएस मिलता है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड मिलता है सीएल की तरफ से। वहां पे भी आपको जैसे मैंने बोला टेस्ट जिम वगैरह तो होते ही होते, प्लस वहां पे यू नो अरिथमेटिक डिकोडेड बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ सीएल, अरिथमेटिक डिकोडेड, ज्योमेट्री डिकोडेड, ऐसे भी आपको वहां पे वीडियोस मिलते हैं एक्स्ट्रा, राइट। तो वो भी हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्टर के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स आल्सो, अपार्ट फ्रॉम आवर क्लासरूम ट्रेनिंग या सीएल पर्टिकुलर आर नासिक ट्रेनिंग, राइट। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। सो ये जो सिलेबस आप अगर दिखेगा ना, वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी मोर उसके ऊपर आता जाएगा, राइट। कॉन्ट का ऑलरेडी मैंने बोला कि फिर मॉक का प्लानिंग, उसके ऊपर हम पर्टिकुलर सेशन लेंगे, मॉक और उसका प्लानिंग, राइट। वो कैसा करना है, कैसा हमें एक्सेल शीट बना के कैसे वहां पे स्कोर डालने हैं, वो सब हमें करना है, राइट। वो हम लोग करेंगे, मतलब जैसे आपका सिलेबस 50 to 60% जैसे कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद हम मॉक प्लानिंग का शेड्यूल आपको देंगे, ठीक है। तो ये चीजें तब वहाँ एक्चुअली डिस्कस करने की जरूरत है। सीएल नासिक के एमबीए प्रोग्राम, so we have new batches to be starting tomorrow, right? सो ये जनरल, मतलब आप देखोगे ये यूनिवर्सल होता है थ्रू आउट द कंट्री। सीएल जो है थोड़ा सा मतलब एकदम यूनिवर्सल पैटर्न होता है। उनके जो हैंडआउट्स है, वो हैंडआउट्स हम नासिक के खुद के नहीं होते, जो नेशनल लेवल पे यूज होते हैं ना, जो टॉप फैकल्टीज बनाते हैं, वही हैंडआउट्स आपको सब जगह पे मिलते हैं सीएल के। तो वो हैंडआउट्स क्लासरूम हैंडआउट्स होते हैं, फिर आपको बुक्स मिलते हैं, वो बुक्स आपको मिलेंगे, फिर आपको टेस्ट जिम जैसे मतलब वही बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ वहां कहीं पे घूमने की जरूरत नहीं रहती है, राइट। 17 कैट मॉक्स एंड नॉन कैट मैक्स, उसमें से 25 आर कैट मॉक्स, और नॉन कैट जैसे मैंने बोला जैट, एनमैट, सीईटी वगैरह ये चीजें आपको मिलते हैं। हैविंग 7,500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनफैक्ट जो एसआईएस रहेगा ना, आपको जो भी आपको लॉगिन मिलेगा वंस यू टेक एडमिशन, तो लॉगिन मिलता है, तो वहां पे आपको प्रेजेंटेशन मिलता है। द काउंसलर विल गिव यू प्रेजेंटेशन की कैसे आपको डैशबोर्ड यूज करना है आपका, कैसे आपको मॉक्स देने हैं, कैसे टेस्ट जिम देना है, लॉगिन पासवर्ड वो सब वहां पे आपको मिलेगा, वो ट्रेनिंग सब मिलेगा, डोंट वरी, राइट। तो ये सब चीजें वहां पे होगी। कल से वी आर स्टार्टिंग। सर व्हाट इज टाइमिंग ऑफ द बैच, if you are listening? Take a second. So this is our latest achievement, we would say. Our one of student, Mr. Shubham Gangude, is got selected in IIM Ahmedabad. Selected मतलब कॉल नहीं, सिर्फ वो फाइनली उसका एडमिशन हो गया। एक और एक्चुअली यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये कुछ एमबीए कैट और सीईटी के हमारे रिजल्ट से यू कैन सी। इसमें शायद हाँ एक सीईटी का जो मैंने बोला ना, एमबीए सीईटी, एक्चुअली वो पिछले साल का सीईटी का स्टूडेंट है, लेकिन पिछले साल का मतलब सीईटी 2020 का, लेकिन ड्यू टू द पैंडेमिक ये सीईटी के एडमिशन ही मतलब लेक्चर शुरू हो गए फरवरी 2021 में, जैसे मैंने बोला ना। तो अभी आज उससे मैंने बात की, हमारा पूरा क्लासरूम स्टूडेंट था सीएल नासिक का, ये सीएल नासिक के स्टूडेंट्स एक्चुअली जो भी आपने देखे। सो ही इज नाउ जमनालाल बजाज नाउ, राइट, जेबी में वो अभी पढ़ रहा है। तो हम इनके भी लेक्चर्स रखेंगे, अभी शुभम है, रजत है, उनके लेक्चर्स आपको रखेंगे तो आपका आइडिया भी आ जाएगा ये लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे स्ट्रेटेजीज यूज किया था, व्हाटएवर, ये सब चीजें आपको मिलेंगे। एंड दिस आर सम ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है, सॉरी। दिस इज रजत, अबाउट whom I told you, these are some of the results. Okay, so any queries you have, please ask, कुछ भी queries रहेंगे तो, कुछ queries है आपके? आप वैसे यहाँ पे भी पूछ सकते हो, आप सोहिल सर, जो भी वहाँ पे हमारा टीम मेंबर्स है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, वैसे फैकल्टीज से पूछ सकते हो ड्यूरिंग, आप अगर लेक्चर में डेमो लेक्चर वगैरह कुछ करते हो, शील रियलाइज देयर आल्सो, वहाँ पे भी कुछ क्वेरीज होंगी तो पूछ सकते हो। लेकिन अगर अभी कुछ क्वेरी तो यू कैन आस्क एनी क्वेरीज, प्लीज टेल मी। ऋषिकेश एवरीथिंग क्लियर? सर फी स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है? एक सेकेंड।
Okay, Rishikesh, actually I'm not able to connect to Soil sir, but I'll ask him to call you and give you the details about fee structure. Okay? He can give you more details. Okay, sir. Sir, Yes, Rushikesh. fees structure उनको चाहिए था. Okay. So, abhi Rushikesh, what are you pursuing right now? In which year? Sir, I am last year B engineering. Last year B. So you will be eligible for CAT 21, right? Yes, sir. Yeah. So the course fee for the only CAT 21 is 20,000, and if you pay it in one go, then it is 18,000. Yes, sir. So it will But include the complete study material, all the mock tests. So everything it will be there, and lectures sir. are on the Monday, Wednesday, and Friday. This day, yes, sir. and timing is 5 to 7. Sir, and online session होने वाले हैं क्या? Yes, online till the situation is not normal, and after that it will be offline at Career Launcher Center. Okay, sir. And sir, fee हम monthly भी pay कर सकते हैं ना? Monthly as in 2 या max to max 3 installment कर सकते हैं. Okay. हाँ, तो 20,000 में आपको सारा मतलब 12 से 13 स्टडी मटेरियल के बुक्स है. क्लास है, क्लास के अलग अलग शीट से, वो पूरा स्पाइरल बाइंडिंग का शीट अलग है, तो वो सब मिला के वो सब, और इवन फॉर्म फिलिंग का सपोर्ट रहेगा. कौन से फॉर्म रिलीज हुए, उसको कैसे भरना है, क्या है, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. Thank you, sir. हाँ. Anything else, Rishikesh? No, sir. Sir, हम कैट का एग्जाम की प्रिपरेशन करके सीईटी का भी सीईटी भी दे सकते हैं क्या? Yes, उसमें होता है, उसमें सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, तो वो लॉजिकल रीजनिंग के 4-5 टॉपिक्स होते हैं, वो अलग से पढ़ने पड़ते हैं. बाकी ऑल सिलेबस आपका कैट में कवर होता है. सिलेबस सेम रहता है ऋषिकेश, लेकिन उसमें क्या है, आपको पूरा स्ट्रेटेजी और उसका पूरा सॉल्विंग मेथड है ना, वो अपने को अलग से तैयारी करना पड़ेगा. बिकॉज कैट में कैसे यू हैव 3 hours एंड 100 क्वेश्चंस, और सीईटी में होता है 2.5 hours एंड 200 क्वेश्चन. मतलब एक क्वेश्चन को यहाँ पे कैट में तुमको 2.5 से 3 मिनट मिलता है, और सीईटी में एक क्वेश्चन के लिए 40-45 सेकेंड ही मिलता है. सो टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, खाली अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड स्पीड में फर्क पड़ेगा. तो स्पीड के लिए अलग से पूरा आपको वो शॉर्टकट ट्रिक्स अलग रहेंगे, तो उसमें वो फर्क पड़ता है. तो ये मैंने जो फीस बताया आपको, ये फीस जो है वो कैट 21 तक का ही है. अगर कैट प्लस सीईटी करना है तो आपके क्लासेस है मार्च 2022 तक चलेंगे, तो उसका फीस 25,000 है. करेक्ट. उसमें फिर अलग से सीईटी का स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बैचेस भी और 4 महीने एक्स्ट्रा चलेंगे. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. ठीक है, सर थैंक यू सर. यस. So let's end the session. yes.